Kirchhoff's laws. तो why Kirchhoff's law is important? Kirchhoff's law important क्यों है? There are some complicated circuits and it is very difficult to use Ohm's law to calculate current in the arm and equivalent resistance. To solve complicated some circuits easily, we use Kirchhoff's laws. There are two types of the Kirchhoff's laws. Number one is Kirchhoff current law, KCL, and number second is Kirchhoff's voltage law, KVL. Kirchhoff current law is also known as simply current law. Kirchhoff current law is also known as junction rule, because in the Kirchhoff current law junction is used. It is based on conservation of charge. Mathematically, its formula is sigma I equal to 0. Its statement sum of all currents meeting at junction is equal to 0. So listen again, sum of all currents meeting at the junction is equal to 0. So KCL is also known as junction rule. Now Kirchhoff voltage law is also known as voltage law. It is also known as loop rule or mesh rule. It is based on conservation of energy. Mathematically, it is sigma IR equal to sigma E. E means EMF, or it is also write as sigma delta V equal to 0. Its statement is the sum of product of current and corresponding resistance is equal to sum of EMFs in closed loop. So listen again, sigma IR equal to sigma E is a mathematical expression of KVL. Its statement is the sum of product of current and corresponding resistance is equal to sum of EMFs in closed loop. Now, how to draw its diagram for KCL?
Now I am starting KCL. So how to draw the diagram for KCL, Kirchhoff current law? Suppose that we have the 5 different wires meeting at the junction O. These wires has some resistance, and in which these are the 5 wires 1 2 3 4 5, in which currents are flowing I1, I2, I3, I4, I5. It is clear from the diagram, I1, I2, I3 currents are going towards the junction, and I4 and I5 are going away from the junction. If we apply Kirchhoff current law, according to Kirchhoff current law, sigma I equal to 0. Sum of all the currents meeting at the junction is 0. The currents which are going towards the junction taken as positive, and the currents which are going away from the junction taken as negative. So I1 plus I2 plus I3, because these 3 currents I1, I2, I3 are going towards junction, so take plus sign. Now add also the currents going away from the junction, but put negative sign, minus I4 plus minus I5. मैंने सारे करंट्स को प्लस किया है, I1, I2, I3, I4, I5. ये याद रखा है कि I1, I2, I3 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं तो प्लस लिया, और जो जंक्शन से दूर जा रहा है I4, I5 उन्होंने माइनस लगाया. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन. It is clear from the expression the I1, I2, I3 currents are going toward the junction and I4, I5 are going away from the junction. It means the sum of all the currents going towards the junction is equal to the sum of currents going away from the junction. In a simple way, you can say incoming current is equal to outgoing current. Incoming current equal to outgoing current. This is the KCL. Let us use some examples to discuss Kirchhoff current law clearly. We have 3 wires. In the 3 wires, 1 ampere, 2 ampere are current flowing in the first and second wire. In the third wire, calculate the value of X, means value of current X. It is clear from the diagram. Apply the condition of incoming current equal to outgoing current. 1 and 2 ampere are going towards junction, and X current is going away from the junction. So 1 plus 2 equal to X. So we get X equal to 3 ampere. Look the next example. Here 7 ampere, this is 10 ampere. Calculate the value of X. So how to calculate the value of X? Again apply incoming current equal to outgoing current, then X equal to 10 minus 7, we get 3 ampere. So 3 ampere current is the value of X. So now in this way we calculate the currents in the different wire. Sometimes, suppose we have the 3 wires, here current is I, here current is I1. So calculate what is the value of X. So how to calculate the value of X? Then again apply incoming current equal to outgoing current, so we get X equal to I minus I1. It is clear from the diagram, the 2 currents I1 and X is going towards the junction, and this is the single wire in which the current I is flowing. So current I is the total current. If we want to calculate the current in the next wire, then how to calculate total current minus current in one wire? So this is I minus I1. Now we discuss the
Kirchhoff voltage law. How to apply Kirchhoff voltage law? KVL. First we draw a diagram, then we will calculate. Look this diagram clearly and try to draw on your notebook. Resistances are R1, R2 and R3. This is the EMF of cell E1, this is EMF of cell of E2. Currents are flowing I1, I2 and I3. Some points are given A, V, C, D, E and F. Now how to apply KCL and KVL in this circuit diagram, and how to calculate I1, I2, I3. So first we apply KCL, Kirchhoff current law, sigma I equal to 0. तो at the point F, इस F पॉइंट पे आप देखेंगे एक वायर ये है जिसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर ये है इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और एक वायर ये है. तो आप देख रहे हैं कि I1 and I2 current is going toward junction F and I3 is going away. So it is clear I3 equal to I1 plus I2. यहाँ भी देख सकते हैं और C जंक्शन पे भी देख सकते हैं. यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I3 आ रहा है. ऊपर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है. नीचे कितना फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है. तब भी आप देखेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट I3 इक्वल टू I1 प्लस I2. तो सबसे पहले KCL अप्लाई करना है और देखना है कि जो 3 करंट्स I1, I2, I3 इनका आपस में क्या रिलेशन है. नाउ हाउ टू अप्लाई KVL, Kirchhoff voltage law. Here there are the 3 loops. यहाँ पे 3 लूप बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे करंट्स कितने हैं, 3. लेकिन देखेंगे 3 में से जो I1, I2 है वो तो I3 पर डिपेंड कर रहा है, या कह सकते हैं I3 जो है I1, I2 पर डिपेंड कर रहा है. तो मेनली यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी I1, I2 को कैलकुलेट करने के लिए. तो हमें 2 लूप लेनी है, 3 लूप बन रही हैं, 3 में से कोई भी 2 लूप ले लेंगे और उसको हम एलिमिनेशन प्रोसेस से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. I1, I2 का वैल्यू आ जाएगा, यही I1, I2 रख देंगे I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 में, तो I3 आ जाएगा. तो मुझे केवल 2 इक्वेशन की ज़रूरत है, तो मैं 2 लूप ही लेता हूँ, लेकिन हम आपको 3 लूप इसमें लेके बताएंगे कैसे अप्लाई करना है. तो यहाँ पे 3 लूप कौन कौन सी बन रही हैं उनको देखेंगे. सबसे पहले जो लूप बन रही है वो है AFCBA. सबसे पहले ये वाली लूप बन रही है, आप देख सकते हैं डायग्राम में AFCBA. इसमें एक लूप बन रही होगी, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको ये लूप आसानी से दिखाई देने लगे. AFCBA ये एक लूप बन रही है आपकी. ओके, तो अब ये जो लूप बन रही है इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे 3 लूप हैं. एक तो लूप ये है, दूसरी लूप भी हम आपको दिखाई देते हैं. दूसरी जो लूप बन रही है वो ये वाली है FCDEF. मैंने ऐसे क्यों लिया FCDEF, हम ऐसे भी ले सकते थे FEDCF. तो मेनली ये दिखा करो कि सारे करंट जिस डायरेक्शन में हो वो अगर ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. तो FCDEF. नेक्स्ट एक और लूप बन रही है, वो है आपका ABDEA. तो ये ऐसे करके आपकी 3 लूप बन रही. यही तीनों लूप हम एक एक करके बारी बारी से लेंगे. तो सबसे पहले मैंने जो लूप लिखी है वो AFC ऐसे करके लिखा हुआ है. ठीक है, एक बार और देख सकते हैं कौन सा है, AFCBA ये लूप है. अब इस लूप में मुझे अप्लाई करना है KVL, जो कि होता है सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E है. मैंने बोला था सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू 0 भी लगा सकते हो आप,
तो वही हम लोग अप्लाई कर देंगे इसमें। तो आपको करना क्या है, किसी एक पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे और लौट के एफ जाएंगे, फिर सी, बी और ए लौट के आएंगे। तो आपको एक पूरी लूप जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है आपको जाना है। कैसे जाना है, ऐसे क्लॉकवाइज जाना है और लौट के ए पे आना है। मैंने क्लॉकवाइज क्यों लिया है, क्योंकि सारे करंट्स इसी डायरेक्शन में पड़ रहे हैं। तो रूल ये है कि यदि मैंने जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन ली है, ऐसे डायरेक्शन ली है क्लॉकवाइज, अगर उसकी डायरेक्शन में करंट पड़ रहा है तो आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और अगर अपोजिट पड़ रहा हो तो माइनस लेना है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ जाता है तो माइनस लगाएंगे वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में, और अगर प्लस टर्मिनल आ जाएगा सामने तो प्लस लगा देंगे। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम ए से जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आपको दिख रहा होगा, और जैसे ही हम आगे बढ़े हैं, इसको एक बार हटा के देख लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि जैसे ही हम ए से एफ की तरफ बढ़े हैं, ए से एफ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन एफ से सी की तरफ जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पड़ रहा है। तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, I3 R3, I3 इंटू R3 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि मुझे सिग्मा डेल्टा V0 करना है तो I3 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I3 इंटू R3, और प्लस लेंगे चूँकि हमारा क्लॉकवाइज के लॉन्ग पड़ रहा है। फिर जैसे ही हम C से B की तरफ बढ़ेंगे, कुछ नहीं है। अब B से जैसे ही हम A की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पड़ जाता है, तो यहाँ पे लगा देंगे -E2, और फिर E2 से आगे बढ़े, देखा हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R2 जिसमें I2 करंट है और क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ही पड़ रहा है करंट, तो प्लस I2 R2, और फिर हम लौट के A तक आ गए हैं इक्वल टू 0। तो थोड़ा उसको अगर हम सेट करेंगे, I2 E2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो I3 R3 प्लस I2 R2 इक्वल टू E2। तो ये आपकी फर्स्ट लूप से मैंने इक्वेशन बना दी है। फिर बाद में I3 को I1 प्लस I2 में रिप्लेस भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल आप देखिए आगे, अब हम कौन सा लूप लेंगे। नेक्स्ट जो लूप लेनी है वो मैं मार्क कर देता हूँ सबसे पहले। देखिए सबसे पहले मैं इसको मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट जो लूप है वो है F C D E F, F C D E F। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग इसमें कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो आपको इसमें एंटी क्लॉक में अप्लाई करना है। और जैसे ही हम लोग एंटी क्लॉक में बढ़ेंगे, F से स्टार्ट करिए, F C D E F, F से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस पड़ जाएगा R3 जिसमें करंट I3 फ्लो हो रहा है, तो I3 R3 एंटी क्लॉक के अकॉर्डिंग है। C तक बढ़े, फिर C से D की तरफ आए, कुछ नहीं है। D से जैसे ही आगे बढ़े, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है -E1। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक रेजिस्टेंस आता है R1 जिसमें I1 करंट है, तो प्लस I1 R1 इक्वल टू 0, क्योंकि फिर लौट के हम F पे आ गए हैं, ठीक है। तो जब इसको भी हम E1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो आ जाएगा I3 R3 प्लस I1 R1 इक्वल टू E1। ये सेकेंड लूप हो गया, ठीक है। तो अब हम एक और लूप को लगाते हुए इसको बताते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए आगे, नेक्स्ट जो लूप हमको लेनी है, पहले हम इसको लिख देते हैं फिर अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट जो लूप लेंगे वो A B D E A, ये वाली लूप ले लेंगे।
इसको एक बार हम हाईलाइट कर देंगे जिससे आपको ये क्लियर दिखेगा कि मैंने जो लूप ली है वो कौन सी लूप है। ए बी डी ई ए, ये वाली लूप लेंगे, ठीक। अब इसमें भी हम लोग सिग्मा डेल्टा v इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। देखिए अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग अब इसको किस डायरेक्शन में लेना है, इसको ओवरऑल हम लोग ले लेते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन। हम एंटी क्लॉक चलेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे फिर बी तक जाएंगे। तो ए से जैसे ही बी तक जाएंगे तो देखेंगे आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस पड़ा है R2 जिसमें करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है, अपोजिट फ्लो हो रहा है, बल्कि हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं। तो माइनस I2 R2, ठीक है, माइनस लगाना क्योंकि हम एंटी क्लॉक जाना है और करंट इसमें तो ऐसे फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि E2 का सबसे पहले आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल पड़ेगा प्लस E2, फिर आगे बढ़े B तक, फिर B से बढ़ेंगे D तक तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। D से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले ये नेगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक रेजिस्टेंस R1 है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और हमारे एंटी क्लॉक के अकॉर्डिंग है तो प्लस I1 R1। और फिर आगे बढ़े E तक, E से F तक और F से A तक, बीच में कुछ नहीं पड़ा, इक्वल टू 0। E2 और E1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस I2 R2 प्लस I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस बने हैं। 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन लेके हम I1 I2 के लिए सॉल्व कर देंगे। I1 I2 का वैल्यू आएगा, फिर किरचॉफ करंट लॉ I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 में अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
अब इस लूप में अप्लाई करेंगे KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वही काम करना है। ए से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ए से जब स्टार्ट करेंगे तो ए से एफ तक जाएंगे। एफ से जैसे ही आगे बढ़े, देखा पॉजिटिव टर्मिनल आया तो 1 लिख दीजिए, प्लस आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 3 ओम रेजिस्टेंस है जिसमें I2 करंट पास हो रहा है और हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो बिल्कुल सही पड़ रहा है, प्लस 3I2। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक 2 ओम रेजिस्टेंस रहा जिसमें I3 करंट है, ये भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 2I3। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखा एक 4 वोल्ट बैटरी जिसका नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ेगा, तो -4 इक्वल टू 0। तो एक ये लूप पूरा हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3I2 प्लस 2I3 इक्वल टू -4 प्लस 1 -3 ट्रांसफ़र हुआ +3। नाउ पुट I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, then solve, we get 2I1 plus 5I2 equal to 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन प्रिपेयर हुआ। अब मुझे एक इक्वेशन और बनानी है। अब मैं इसको देख लेता हूँ, एक इक्वेशन और कौन सी बन सकती है और कैसे उसको अप्लाई किया जाएगा ये हम देखते हैं। तो अगला जो लूप लेंगे हम लोग, ऊपर वाला लूप ले लेते हैं, FEDCF, जो ग्रीन पेन से मैंने हाईलाइट किया है उसको हम लोग लेंगे। तो कौन सा लूप लिया है, FEDCF। इसी डायरेक्शन में हम लोगों को करंट्स को कंसीडर करना है। तो हम बढ़ते हैं F से E की तरफ, कुछ नहीं है। जैसे ही E से D की तरफ आए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो 2। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे एक 4 ओम रेजिस्टेंस है जिसमें करंट I1 पास हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल I1 हमारे I1 प्लस में ही रहेगा तो 4I1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे D से E की तरफ, ठीक है। E से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे F की तरफ, देखेंगे एक 3 ओम रेजिस्टेंस है। इस 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट I2 पड़ रहा है, लेकिन करंट उल्टा पड़ रहा है और जाना है मुझे C2F जाना है ना, तो ये हो जाएगा -3I2। फिर आगे बढ़े, देखा 1 वोल्ट बैटरी है जिसका नेगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है, -1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 4I1 -3I2 इक्वल टू -1। ये एक इक्वेशन प्रिपेयर हुआ सेकंड। अब मुझे इस इक्वेशन को करना है सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से। तो इस एलिमिनेशन मेथड में आपको क्लियर है, इसमें लिख देते हैं सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सो वी गेट 2I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 3, 4I1 -3I2 इक्वल टू -1। तो ये सबको सिंप्लीफाई करने के लिए पता है कि मुझे ऊपर इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फॉर्म हो। upon 13, so we get 4 upon 13, so I2 equal to 2 upon 13 एम्पियर। अब ये भी I2 आ रहा है, एक्चुअली कहीं देख लेते हैं, ये I1 था, इसको I1 कर लेंगे हम लोग I1 निकाल रहे थे ना, तो ये हमारा I1 आ गया है।
और I3 और चाहिए है. It is clear I3 equal to I1 plus I2. So 2 upon 13 plus I2 is 7 upon 13. So overall we get 9 upon 13. So write final answers. I1 2 upon 13 ampere, I2 7 upon 13 ampere, and I3 equal to 9 upon 13.